हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था रिपोर्ट राइटिंग में, उसका हम आपको सैंपल प्रेजेंट कर रहे हैं उस एस्पिरेंट के द्वारा कि रिटन बाय एन एस्पिरेंट हु क्वालिफाइड रिटन इन सीएपीएफ एसी 2021. तो सी रोट दिस रिपोर्ट. Obviously, I started a series in which I presented you one essay, one argument writing, and I am presenting report. And this series will continue. I will present a lot of write-up in this series. You should watch each and every. I say I'm presenting of different candidates so that you should take feel of different aspirants, at least 10 plus aspirants different. For some I will present more than one write up, but individual at least 10 plus individual candidates write up I will present, and these all qualified. Majority I am trying at least two times they qualified in written, or at least one time they are qualified, so that you can accept yes they have proven. But don't take it as final guarantor, because many candidate I'm seeing even if 2-3 times they qualified written, but they are not getting final result. Some candidates I'm observing they are good enough, their paper 2 is good, for example their writing is good, still they are not qualified. Some candidate I am observing their writing is not that much good, but still they are qualifying. So you have to take all. So in this series I am presenting only those who qualified at least one time written examination, means they have proved up to certain level. Okay, so this is the C presented as a subheading, means Delhi unable to breathe. Otherwise it is topic is oxygen cylinder crisis in Delhi. Okay, so a special correspondent 11/11 2021 actually recently she wrote from your reference. Hospitals in Delhi continue to make SOS calls. This I object, because first time when you are writing something, you should write in full form, even if the term is so obvious. For example, SOS is SOS call means save our souls. So नियर एंड डियर के जो भी आपके नजदीकी हैं, जिनका एक ऐसा समय आया कि इनफैक्ट जहां लोग जो हो सकता था उसको कॉल कर रहे थे कि किसी ढंग से सेव आवर सोल्स, जो हमारे नियर एंड डियर हैं उनको बचा लें. तो ये नॉर्मली आपको करना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जब लिखते हो तो आपको फुल फॉर्म देना चाहिए. एसओएस कॉल्स desperately requesting for emergency use oxygen as many patients and healthcare workers lost their lives battling with COVID-19 due to lack of oxygen. ठीक है. अब जहां कुछ जगह कॉमा देना होता है, चूंकि आप फुल बहुत लंबे लाइन लिखे हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ कॉमा दिया, तो ये यहाँ भी आपको एक कॉमा पढ़ना चाहिए था. तो ये आपको ग्रेजुअली प्रैक्टिस से आता है. अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, country reported about 4 lakhs new cases and more than 20,000 in Delhi itself on a single day. तो ये उस टाइम का है जब पीक में आप देखोगे कि पीक में करीब 4.2 लाख केसेस हो गए थे. अब अभी तक हम यदि डेट्स को देखें तो 4.7 लाख टोटल रिपोर्टेड डेथ इंडिया में है, और बहुत सारे हैं अनरिपोर्टेड डेथ भी हैं. कुछ का जिनका भी सर्टिफिकेट नहीं बना, जिनका भी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दिया गया, तो उनका डेथ कोविड में नहीं काउंट किया गया. अदरवाइज जो भी अदर रिपोर्ट्स हम देखते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है का है, जो सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, वो सब आपको ये करना था. दिस कम्स at a time where a parliamentary standing committee report had already issued warning on lack of sufficient oxygen and hospital beds to occur in near future. The major reason being cited behind this issue is the insufficient supply of oxygen to Delhi, which also invited a tussle between द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो कहीं ना कहीं एक जो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो ब्लेम गेम था, दैट वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल. उस ब्लेम गेम के जगह जो है यदि हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखते तो शायद चीजें कुछ सही हो सकती थी. इनफैक्ट उस ड्यूरेशन में हर स्टेट के पास अचानक ऐसा हो गया. सेकेंड इंडिया
के पास प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि इंडिया ने फर्स्ट वेव के बाद ये सोच लिया कि हमने विजय प्राप्त कर लिया। इनफैक्ट यदि आप इकोनॉमिक सर्वे देखो तो चूंकि इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट किया गया था वो सेकेंड वेव आने से पहले, इकोनॉमिक सर्वे में भी इनफैक्ट प्रेज किया गया कि हमने जो है हाउएवर हमारा इकोनॉमी डाउन गया, लेकिन हमने पेंडेमिक के सेकेंड वेव को, दुनिया के अन्य पार्ट में पेंडेमिक का सेकेंड वेव आया लेकिन हमने उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन बाद में सिचुएशन टोटली और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ठीक है, तो अदर रीजन्स बीइंग साइटेड आर द distance of Delhi from major oxygen producing centers of country and excessive होर्डिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन दिल्ली। अब कुछ लोग क्या है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है होर्डिंग कर लिए कि जिनको एक्चुअल में ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप मानो, सम टाइम ऐसा होता है ना कि नमक की कमी हो गई फॉर एग्जाम्पल मानो, तो अचानक लोग नमक खरीदने लगते हैं। कुछ ऐसे टाइम हुआ है कि 20 रुपीज़, अभी 20 रुपीज़ चलो नमक एक तरह से है, जिस समय मैंने एक दो टाइम देखा कि 10 रुपये kg नमक था, उस समय होर्डिंग करके लोग 50-60 रुपये कर लिए। अब जस्ट कॉमन सेंस लो कि सॉल्ट है एक ऐसा चीज़ है कि हर को ज़रूरत है, हर को विदाउट सॉल्ट शायद शुगर नहीं खा सकता लेकिन सॉल्ट की ज़रूरत है। अब हमारे पास सी लाइन जो है बहुत लंबा सी लाइन है, 7,500 प्लस, यदि हम सारे आइलैंड्स को यदि मिला दें तो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके कोई इशू नहीं होंगे। सेम सिचुएशन ऑक्सीजन का हुआ। यदि ऑक्सीजन को, यदि आप जस्ट इमेजिन करो ऑक्सीजन सिलेंडर आप लिए हुए हो तो आप खुद तो उसको नहीं चढ़ाओगे, डॉक्टर ही करेंगे। तो प्रॉपर यदि डॉक्टर के थ्रू किया जाता, हॉस्पिटल के थ्रू मैनेज किया जाता तो प्रॉब्लम इतना ना होता। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट taking note of the situation has directed the center to complete the requisite supply of oxygen to Delhi. It also suggested the center, state government and Indian Railways to work in synchronous way. Round the clock response to SOS call। देखो अब SOS कॉल आपने यहाँ लिखा, दैट्स फाइन, यहाँ चलेगा, लेकिन वहाँ आपको फर्स्ट वाले में करना चाहिए कॉल्स। एंड रिस्टोरेशन, ठीक है, restoration of tankers for appropriate distribution of oxygen is being taken up by the Delhi administration to come out of the crisis. The center has also assured complete correspondence to improve the situation. तो ये सिचुएशन हुआ। एक चीज और, ये राइटअप जो स्ट्रक्चर वाइज और सिंक्रोनस वाइज ये सही है। सिंक्रोनिसिटी है फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, चूंकि आपका अप्रोक्सीमेट 200 वर्ड्स में ही लिखने के लिए होता है, 200 वर्ड्स, तो आपके पास अधिक डेविएशन का चांसेस नहीं होता है। लेकिन यहाँ लिटिल बिट मिसिंग क्या है, फर्स्ट वाला पैराग्राफ में यदि देखोगे तो लिटिल आपका यहाँ डेटा दिया हुआ है कि कंट्री रिपोर्टेड अबाउट 4 लाख न्यू केसेस, यानी कि इनफैक्ट above 4 lakh cases, new cases and more than 20,000 in Delhi itself in a single day। अब इसमें से कुछ आपको और डेटा यदि होता, अब फॉर एग्जांपल आप ये मान करके नहीं चले कि ये क्वेश्चन आएगा या प्रिपेयर, लेकिन यदि मैं ये वैल्यू इनहांसमेंट में कर रहा हूं, अदरवाइज दिस इज फाइन, डेटा पार्ट को हम छोड़ दिया जाए तो ये जो राइटअप है ये बहुत अच्छा है और इट विल फेच इन माय ओपिनियन it should get 5 to 6 marks depending on examiner, because 1 mark इधर उधर का ये, तो 5 to 6 marks ये प्राप्त होना चाहिए इसमें। अब यही थोड़ा सा डेटा ये प्रेजेंट किया जाता तो ये 7 मार्क्स तक इसमें अचीव किया जा सकता था। अदरवाइज डिपेंडिंग ऑन 5 और 6 एग्जामिनर के ऊपर समटाइम डिपेंड करता है कि मूड पे, चूंकि देखो हैंड राइटिंग इनकी अच्छी है तो ये भी मायने रखता है। हैंड राइटिंग आपका अच्छा हो, फॉर एग्जांपल हो सकता है सेम कंटेंट टाइप का लिखे कोई जिसका हैंड राइटिंग पता नहीं चल रहा है, तो शायद थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर हो वो आपके वैक्यूम में वर्क नहीं करते हैं, वो उनको यदि राइटअप अच्छा लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये सही देते हैं। तो मुझे लगता है इनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, लेजिबल है, रीडेबल है और प्रॉपर, देखो जो एक इंग्लिश राइटअप जिस ढंग से होता है
वो उस ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है वो इवनिंग में मैं ऑलरेडी बताया कि उसके पहले भी दोनों थे जो एसे और रिपोर्ट, एसे और आर्गुमेंट, उसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा चुका था। इसका भी पीडीएफ आज इवनिंग में आपको केन स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कमिंग डेज में मैं इससे रिलेटेड डिफरेंट और कई कैंडिडेट्स के राइटअप प्रेजेंट करूंगा। जो भी है, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 22 या 2023 जो भी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।